हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है, बीजेपी की तोड़ी है, बीजेपी का हिंदुस्तान मुसलमान का भी है, हिंदुस्तान मुसलमान का भी है। पुलिस किलिंग नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। असम गवर्नमेंट मुर्दाबाद, 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 असम गवर्नमेंट मुर्दाबाद। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मिला टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं असरार अहमद इस वक्त मैं मौजूद हूँ असम भवन के बाहर। यहाँ पर जो कल असम में बर्बरता हुई, पुलिस की जानिब से प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाई गई, उनमें से 2 की मौत हो गई। और उसके बाद एक शर्मनाक तस्वीर उस वक्त आई जब एक फ़ोटोग्राफ़र था जो उस लाश पर कूद रहा था, जंपिंग कर रहा था। उसके ख़िलाफ़ कुछ लोग आज असम भवन के पास प्रदर्शन करने पहुँचे थे, लेकिन उनको प्रदर्शन नहीं करने दिया गया। 5-6 मिनट तक उनको टाइम दिया गया। 5-6 मिनट वो लोग यहाँ पर रुके, उसके बाद उन्हें डिटेन कर लिया गया। अब डिटेन करने के बाद बसों में उन्हें घसीटते हुए भरा गया है। वो तस्वीरें सब आप देख सकते हैं। और जितने यहाँ प्रदर्शनकारी नहीं पहुँचे थे, उससे ज़्यादा यहाँ पर पुलिस बल मौजूद थी। उससे ज़्यादा पुलिस के फोर्स और नौजवान दूसरे खड़े थे। उनको 5 मिनट का समय नहीं दिया गया। 5 मिनट में ही उनको यहाँ से डिटेन करके यहाँ नियरेस्ट जो थाना है वहाँ पर ले जाया गया है। लेकिन एक सवाल ये है कि जब दिल्ली में दूसरों जगहों पर मूल्य काटे जाएंगे, एक सांप्रदायिक नारा लगाया जाता है, एक विशेष समुदाय को टारगेट करने की कोशिश की जाती है, तो वही दिल्ली पुलिस उनको परमिशन देती है और उनको पकड़ती नहीं है, उनको डिटेन नहीं करती है। लेकिन उसके खिलाफ जब कोई भी आवाज़ बुलंद होती है तो दिल्ली पुलिस उसको दबाने की पूरी कोशिश करती है। In Assam, what is happening right now is all we are seeing what is happening in Assam right now, and we ended the protest, and all the protesters have already detained, and he was just giving the bite, and I don't know why the police detained him also. नहीं आपको डिटेल्स पता है व्हाट इज गोइंग ऑन इन असम? In the name of citizenship, what is going on there? We all know what is going on there. It is clearly a big attack against minorities. No, करने के लिए आए थे, क्यों आए थे? In Assam, what is happening right now is all we are seeing what is happening in Assam right now, and we ended the protest, and all the protesters have already detained, and he was just giving the bite, and I don't know why the police detained him also. नहीं आपको डिटेल्स पता है व्हाट इज गोइंग ऑन इन असम? In the name of citizenship, what is going on there? We all know what is going on there. It is clearly a big attack against minorities. No, गवर्नमेंट ने जो एविक्शन किया है, वो जो इलीगली जो एनक्रोच हुआ है लैंड, उसको एविक्शन क्या है मैडम आप? Those terminologies, the Assamese government, the BJP government with the help of the Assam police force is forcefully evicting a mass number of people from their lands. And you cannot term it as an eviction process. It is not at all an eviction process. You have seen what had happened in Assam yesterday. A heavily armed police force is targeting the minority people there, the Muslim community there, and not only, and you have seen the people there. They are only using the sticks. They are only fighting and resisting for their basic rights, and they are only striving to live in their own homeland. But the police force is using their heavily armed force, and with those arms they are shooting their own citizens. And not only that, the police associated people are actually targeting these Muslim dead bodies, and they are dancing over that. And this is happening in the largest democratic country in the world, and it's a very shameful act for all of us. And we demand that this kind of process, which is termed as eviction, should be stopped at the earliest, and the basic rights of the people over there should be considered by the authorities. So a independent judicial inquiry should be ensured for a free trial. And the concerned police officers, we doubt that it is not only the action from the police officers, but it is a state-sponsored action. It is a state-sponsored action against the Muslims. One minute. It's actually. मैं आपको कह रहा हूँ
Assam. Assam is the experimental land of the racial law, and they are orchestrating, they are implementing this kind of racial law through this kind of forceful action using the police force. So the democratic society should not be kept silent. We should raise our voice. That's why the students and youth under the banner of fraternity movement gathered over here. We cannot kept ourselves silent. Concerned authority, the state government, and we demand that the President of India should intervene in this issue, and this kind of small-scale genocide should not happen in this country at all. This is what we demand. Shamsir Ibrahim. Thank you. असम भवन के पास मौजूद हूँ। यहाँ पर प्रदर्शनकारी पहुँचे थे, लेकिन उससे ज़्यादा पुलिस वाले थे और उनको 5-10 मिनट में डिटेन कर लिया गया। हमारे साथ एक प्रदर्शनकारी हैं, हम इसे जानने की कोशिश करेंगे। जो कल घटना हुई असम में, जिस तरीके से पुलिस ने गोलियाँ चलाई, कैसे देखते हैं? देखिए, इस पूरे इंसिडेंट्स को आप देखेंगे, आज से नहीं, पिछले 70 सालों में द वे स्टेट हैज़ बीन एक्टिंग टू कर्ब द वॉइसेस ऑफ डिसेंट। जो भी असम में हुआ एक डेडली कॉकटेल है, एक डेडली मिक्सचर है जिनोफोबिया और इस्लामोफोबिया का। कुछ लोग कहते हैं कि असम हमेशा से जिनोफोबिक रहा है। दे आर ऑलवेज स्केप्टिकल अबाउट जो इलीगल माइग्रेंट्स बाहर से आए हैं। लेकिन एक सवाल है कि आप सेलेक्टिवली टारगेट क्यों कर रहे हैं? आप सिपाझार जो डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ पे पिछले 1 महीने में 800 से ज़्यादा फैमिलीज़ जो इंटायरली मुस्लिम हैं, उनको आपने अपनी ज़मीन से उखाड़ दिया। आपके पास एक प्रॉपर रिलोकेशन मेजर नहीं है, आपके पास स्टेट के पास एक प्रॉपर रिहेबिलिटेशन प्लान नहीं है। और तब एक इंसान जब खड़ा होता है इसको कहने के लिए कि आप हमें ज़मीन से बेदखल तो कर रहे हो, लेकिन हम जाएंगे कहाँ, इसका जवाब आप हमें दीजिए, तो आप उसको गोली मार देते हैं। और गोली मारने के बाद आप उसकी लाश के साथ बेहुरमती करते हैं। ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है। जिस तरीके से एक फोटोग्राफर था, वो लाश पर कूद रहा था, तो वो सबसे शर्मनाक तस्वीर थी जो आसाम से आई। वो पुलिस से हायर ही किया गया था, वो पुलिस का फोटोग्राफर। भले ही आपको उसकी हरकत शर्मनाक लगती हो, लेकिन उससे ज़्यादा शर्मनाक स्टेट है। ऐसे सैकड़ों हज़ारों केसेस हैं जब दंगों में लोगों को इनोसेंटली मारा जाता है, औरतों को। आपने देखा नहीं गुजरात में क्या हुआ, आपने देखा दिल्ली दंगों में क्या हुआ। तो शर्मनाक हरकत तो अब हमें दिख के आ रही है। स्टेट उससे ज़्यादा शर्मनाक है, जिसके पास एक प्रॉपर रिहेबिलिटेशन प्लान नहीं है, और फिर भी वो लोग को उसकी ज़मीन से निकालता। आप उस इंसान का गुस्सा इमेजिन करने की कोशिश कीजिए, जो सिर्फ एक लाठी पे एक आर्म्ड पुलिस के भीड़ में घुस रहा है। वो मरा नहीं है, वो शहीद है। उसकी हिम्मत को, उसके जोश को लोग को समझना चाहिए, उसके जोश को सलाम है। और एक चीज़ आप एक दूसरी चीज़ इमेजिन करिए, दिल्ली में जो कैपिटल है, डेमोक्रेसी का कैपिटल है, यहाँ पे आसाम भवन में आके लोग को खड़े नहीं होने दे रहे हैं। वो लोग आसाम भवन के बाहर खड़े होकर एक बाइट नहीं देने दे रहे हैं। क्या ये डेमोक्रेसी है? क्या इसीलिए हम कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट को हमेशा अपने सर पे रखते हैं? ये नॉनसेंस है, ये मजाक हो रहा है। इसी दिल्ली में जंतर मंतर पे जब नारे लगते हैं कि जब मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, तब तो दिल्ली पुलिस म्यूट बैठी खड़ी रहती है। और अब जब लोग खड़े होकर अपनी चीज़ें एहतजाज कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं पीसफुल वे में, कि लुक वी आर नॉट हैप्पी विथ व्हाट हैपेंड यस्टरडे, लुक वी आर नॉट हैप्पी विद द वे यू आर ट्रीटिंग मुस्लिम्स इन असम, लुक वी आर नॉट हैप्पी विद द वे यू आर ट्रीटिंग मुस्लिम एल्सवेयर इन द कंट्री, आप उसको बोले नहीं दे रहे, आप उसको डिटेन कर रहे हैं, उसको उठा के लेके जा रहे हैं। ये गुंडागर्दी है स्टेट की। तो जिनको डिटेन किया गया, कहाँ ले गया, कुछ पता नहीं? इन जनरल पिछले एक सवा सालों के एहतजाज में जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है, उनको लेके जाते हैं, शाम तक रखेंगे, वो सारी उनकी डिटेल लेंगे। दे विल ट्राई टू हरास देम एज मच एज दे कैन, क्योंकि उनको दिक्कत है कि डिसेंट वॉइसेस आप कैसे लेके आ रहे हैं। उनको दिक्कत है कि आप स्टेट के प्रोपेगेंडा के ख़िलाफ़ कैसे खड़े हैं। उनको दिक्कत है कि आप पीसफुल वे में कैसे आ रहे हैं। दे विल बी हरास्ड, उनको हरास करते हैं, उनको तंग करते हैं, फिर उनको छोड़ देंगे वो। थैंक यू। देखिए, ये थे एक प्रोटेस्टर थे आसिम मुस्तफ़ा, जो बता रहे हैं कि असम में जो गुंडागर्दी हुई है, जिस तरीके से क्रूरता हुई है, उसके खिलाफ कुछ लोग आए थे प्रदर्शन करे, तो उनको परमिशन नहीं दिया गया, 5 मिनट उनको खड़े नहीं होने दिया गया। लेकिन वही दिल्ली है, जंतर मंतर का इलाका था, जब मूल्य काटे जाएंगे नारे लगा रहे थे लगातार वो लोग, तो दिल्ली पुलिस खड़ी हुई, तमाशा बनी हुई थी, देख रही थी, तमाशबीन थी, लेकिन उनको नहीं रोका गया। और उसके बाद ही जब दूसरे दिन तीसरे दिन उसके खिलाफ प्रदर्शन वहाँ जंतर मंतर पर करने की कोशिश की जा रही थी, तब भी दिल्ली पुलिस ने उनको वहाँ पर 5 मिनट भी रुकने नहीं दिया गया। ऐसा हुआ कि जो लोग देखने आए थे प्रोटेस्ट क्या हो रहा है, यहाँ आंदोलन कैसे चल रहा है, उनको भी दिल्ली पुलिस ने डिटेन कर लिया था। तो ये बड़ा सवाल है कि एक जगह क्रूरता होती है, उसके खिलाफ लोग इकट्ठा होते हैं, आवाज़ बुलंद करने आते हैं, लेकिन उनको एहतजाज नहीं करने दिया जाता। मिलत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये
और 1 साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।